Welcome, my dear students. Welcome to Mathological, another very important session on Maxima and Minima. So, if you have not watched the previous sessions, तो एक बार पहले सेशंस को previous sessions को देख लोगे तो कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा क्लैरिटी आएगा. And in this session, we will be doing all the remaining varieties of the Maxima and Minima so that you are completely comfortable with the topic. कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो you can comfortably solve it. Okay? स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू इट इफ यू लाइक द कंटेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स. Okay, first question. The question is find the minimum value of the function, and the function of x is x plus 8 into x plus 13 divided by x plus 4. So कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? If x is a real positive number, obviously x को पॉजिटिव होना पड़ेगा. ठीक है, तो x plus 8 into x plus 13 divided by x plus 4, that is our fx का वैल्यू. नो इन एनी सच क्वेश्चन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो हमारा प्रॉब्लम है. तो डिनोमिनेटर वैल्यू को रिमूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अप्रोच करना पड़ेगा. तो लेट्स अज्यूम x प्लस 4 को मान लेते हैं a. लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू a. एंड इफ यू अज्यूम x प्लस 4 इज इक्वल टू a, देन x प्लस 8 क्या हो जाएगा? x प्लस 8 इज x प्लस 4 प्लस 4. तो x प्लस 8 विल बी x प्लस 4 प्लस 4, यानी कि दिस इज a प्लस 4. But this is x plus 4 plus 4, तो this will be a plus 4. Similarly, x plus 13 क्या है? x plus 13 है x plus 4 plus 9. So that will be a plus 9. पुट कर दो वैल्यूज fx में, तो fx हमारा बन जाता है फिर fx will be equal to x plus 8 into x plus 13 which will be a plus 4 into a plus 9 divided by a. ब्रैकेट को ओपन करते हैं. So a into a square plus 9a plus 4a, so that will be 13a plus 4 into 9, 36 divided by a. So a square by a becomes a only, plus 13a by a becomes 13 plus 36 by a. So ये बन गया हमारा fx का वैल्यू. एंड x इज द पॉजिटिव नंबर, तो ऑब्वियसली x plus 4 भी पॉजिटिव है. सो a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. a इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, a इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव. So fx becomes equal to a plus 36 by a. 36 by a को साथ में लिख देते हैं a के, और plus 13. Now if you focus on this part, ये पार्ट देखा देखा सा ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं. ठीक है, और a is greater than 0. So a plus 36 by a पे AMGM अप्लाई कर दो, AMGM अप्लाई कर दो. तो a plus 36 by a divided by 2 is greater than equal to square root of a into 36 by a. और 36 by a से a कैंसिल आउट हो गया, 36 बचा सिर्फ, स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. सो a plus 36 by a will be greater than equal to 6 into 2, 12. 12 is the minimum value of this part. So this is always greater than equal to 12. और 13 तो कांस्टेंट है, 13 तो कांस्टेंट है, तो fx will be greater than equal to 13 plus 12, 25. सो मिनिमम वैल्यू विल बी 25. ऑफ फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 25. और 25 कब आएगा? व्हेन a इज इक्वल टू 36 बाई ए. इक्वल टू 25 तब होगा व्हेन a इज इक्वल टू 36 बाई ए. a इज इक्वल टू 36 बाई ए. सो a स्क्वायर इज 36, यानी कि a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. एंड सिंस a इज x प्लस 4, तो व्हेन x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 2. सो इट x इज इक्वल टू 2, the minimum value will be attained, which is 25. क्लियर है बात? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम ऑफ द फंक्शन fx if fx is equal to x plus 1 into x plus 7 divided by x minus 1 and x is greater than 1. So if x is greater than 1, then x minus 1 will be positive, greater than 0 होगा. सारे के सारे एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएंगे. तो fx हो गया हमारा x plus 1 into x plus 7 divided by x minus 1 divided by x minus 1. Okay, now if x minus 1 को मान ले हम equal to a, so x plus 1 will be a plus 2, x plus 7 will be a plus 8. Put all these values in the expression, so fx becomes equal to
a plus 2 into a plus 8 divided by a. So this becomes a square plus 10a plus 16 divided by a, which is a plus 16 by a plus 10. a plus 16 by a plus 10 और a plus 16 by a पे लगा दो AMGM इनइक्वालिटी, तो क्या आ जाएगा, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, a plus 16 by a by 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, देखिए a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज 4. तो a plus 16 by a is always greater than equal to 16 का स्क्वायर रूट, विच इज 4 into 2 8 greater than equal to 8. So this is greater than equal to 8. ऐड कर रहे हैं 10, तो क्लियरली दिस होल सम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 plus 10 18. 18 से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा. इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू कब आएगा, मिनिमम वैल्यू हमारा आने वाला है व्हेन a इज इक्वल टू 16 by a, यानी कि a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा जब, और a इज इक्वल टू 4 यानी x minus 1 इज इक्वल टू 4. सो एट x इज इक्वल टू 5, at x is equal to 5, fx is minimum, which is equal to 18. 80. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द fx फंक्शन fx when fx is equal to 20 minus 3x square minus 6 by x. fx is equal to 20 minus 3 को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स. ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. और अगर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन में वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस टर्म, ये तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और हमें फंक्शन की चाहिए मैक्सिमम वैल्यू. सो लेट अस से कोई नंबर हमारा 20 है, 20 में अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 10 आएगा. 15 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो रिजल्ट कितना आएगा, 5 आएगा. यानी कि जितना बड़ा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उतना ही छोटा रिजल्ट आएगा, उतना ही छोटा रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट डिक्रीज करेगा. ठीक है, सो रिजल्ट डिक्रीज करेगा अगर हम बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अगर हमें fx को मैक्सिमाइज करना है, fx को मैक्सिमाइज करना है, तो जो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं दैट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. इफ यू नीड टू मैक्सिमाइज fx, then the value that we are subtracting must be as minimum as possible. Isn't it so? So that implies that our purpose should be to minimize this term. To minimize this term. And if x square plus 2 by x is minimized, तो 3 into x square plus 2x भी minimized हो जाएगा. तो x square plus 2x की मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें क्वेश्चन में, 2 by x की मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या होगा. ठीक है, x इज पॉजिटिव, तो AMGM लगा देंगे यहाँ पे. बट प्रॉब्लम एक और आएगा. प्रॉब्लम क्या आएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है बट डिवाइडेड में x आ रहा है. तो इफ यू अप्लाई AMGM इन x स्क्वायर एंड 2 by x, तो x रिमूव नहीं होगा. तो रिमूव करने के लिए क्या जुगाड़ करेंगे हम, 2 by x को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे सो दैट x स्क्वायर हमारे डिनोमिनेटर में भी आ जाए. सो वील बी अप्लाइंग AMGM इन 3 numbers. वन विल बी एक्स स्क्वायर, वन विल बी 1 by x एंड अनदर विल ऑल्सो बी 1 by x. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 by x प्लस 1 by x डिवाइडेड बाई 3, this would be greater than equal to x square into 1 by x into 1 by x to the power 1 by 3. और ये तो पूरा का पूरा 1 by 3 1 ही हो गया, 1 की पावर 1 by 3 भी 1 ही होगा. तो x स्क्वायर प्लस 1 by x प्लस 1 by x यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 by x will always be greater than equal to 3. If this is always greater than equal to 3, तो मिनिमम वैल्यू कब आने वाला है, मिनिमम वैल्यू will be equal to 3. मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस will be equal to 3. So maximum value of fx will be equal to 20 minus 3 into minimum value of this expression, 3 into 3, 20 minus 9, which is equal to 11. So our answer will be fx value maximum and that maximum value will be 11. Okay, but वो कब वैल्यू होगा हमारा 11, when x square plus 2 by x is minimum. और x square plus 2 by x minimum तब होगा जबकि x square and 1 by x both will be equal. तो x square is equal to 1 by x, तो यानी कि x is equal to 1 हो जाएगा. So fx value minimum at x is equal to 1. At x equal to 1, this will be minimum. क्या है, पार्ट क्लियर है. ओके, ठीक है, लॉजिक समझ में आता है पूरी तरह से. इजी क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि अब तुम्हें ये वैरायटी समझ में आने शुरू हो गया होगा, कंफर्टेबल होना शुरू हो गए होगे, अप्रोच भी समझ में आ रहा होगा. अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है तो एक बार फिर से प्रीवियस सेशंस को देखो, अप्रोच को देखो. हर एक क्वेश्चन में कैसे हमने अप्रोच किया है कि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें कोशिश करना है कि जो वेरिएबल पार्ट है उसको रिमूव करें. और एक यहाँ पे दो हमारे नंबर्स दिख रहे हैं हमको, एक्स स्क्वायर और 2 by x.
अब अगर हम एक्स स्क्वायर 2/x पे एम जी एम अप्लाई करेंगे, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो प्रॉब्लम ये होगा कि हमारा x रह जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2/x में 2x हो जाएगा, x को हटाना है हमको, तो हम 2/x को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, सो दैट हमारे पास न्यूमरेटर में 2x स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर आ जाए। वो पर्पज है हमारा, वही बार बार हम लगातार कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि 90% लोगों को तो समझ में आ गया। फिर भी अगर तुम्हें दिक्कत आ रहा है तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लो पीछे के सेशंस को, एक बार फिर से छोटी छोटी बातों को समझ लो, ठीक है, आराम से देखो, अपनी तसल्ली से देखो, बहुत ज्यादा स्पीड में देखने की कोशिश मत करो, ठीक है, बिकॉज कई बार तुम लोग क्या करते हो कि तुमने स्पीड लगा दी 1.5x 2x, अगर कंफर्टेबल हो, अगर सारी बातें समझ में आ रही हैं, जो कि नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, मैं अपने सेशंस को बहुत स्लोली नहीं ले रहा हूं, तुम देख रहे होगे मैं एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लोली नहीं ले रहा हूं, तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी अगर तुमने स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया, ठीक है। ये लगना हमको कि हमें सब समझ में आ रहा है और एक्चुअल में सब समझ में आना, दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है, और हम इस तरह से करते जाते हैं, और फिर बाद में जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में तो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है करते जा रहे हो, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं या सेक्शनल करोगे तब या मॉक करोगे तब हमें रियलाइज होता है कि हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें चीजें एक्चुअल में समझ में नहीं आई। तो वहां पे जाके ये चीज रियलाइज करने से बेटर है कि अभी जब ये चीज काम कर रहे हो, जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम स्टडी कर रहे हो, एट दैट टाइम डोंट बी टू फास्ट, ठीक है, टेक योर टाइम, पॉज एंड पॉन्डर अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसको कि समझ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं भी चीजें समझ में आ रही हैं तो अप्रोच में कुछ तो समझ में आएगा ना, टेक योर टाइम, स्पेंड करो उस टाइम क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, बिकॉज हमारा जो ऑब्जर्वेशन स्किल है ना, वो भी कई बार इतना खराब हो जाता है समय के साथ, स्पेशली कई बार जो हमारा माइंडसेट है या जिस तरह से हम एजुकेशन लेते हैं अपनी, ठीक है, तो वो उन चीज़ों को इतना गड़बड़ कर देता है कि हम बहुत बेसिक चीज़ों को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है, और वो चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म में बहुत हैम्पर करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल तुमको देता हूँ, ठीक है, और जो एक सबसे कॉमन एग्जांपल है, मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ, तुमसे भी पूछता हूँ, एक बार तुमसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, और वो क्वेश्चन का आंसर तुमको खुद को ही देना है कि इफ़ यू, जब तुम ब्रीद करते हो, ठीक है, तो ब्रीदिंग के टाइम पे व्हाट इज दैट यू आर इनहेलिंग, व्हाट इज यू आर इनहेलिंग, कौन सी गैस इनहेल करते हो? ऑब्वियसली आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑब्वियसली सबका आंसर ये होता है, बुक में भी यही लिखा होता है, यही लिखने पे, यही आंसर करने पे मार्क्स भी मिलेंगे। बट थिंक अबाउट इट, शांति से एक बार इनहेल करो, सांस अंदर लो, इनहेल करो, क्या अंदर गया? नाक पे कोई फिल्टर है जिससे सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाएगा? जो कुछ भी तुम्हारी एयर में होगा, तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग में होगा, ठीक है, वो सब कुछ अंदर जाने वाला है, फिर वो ऑक्सीजन हो, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, फिर वो नाइट्रोजन हो, फिर वो हाइड्रोजन हो, जो भी गैसेज होंगी सब कुछ तुम्हारा इनहेल करते समय अंदर जाएगा। नाक में कोई फिल्टर नहीं लगा, सब कुछ अंदर जाने वाला है। इजंट इट सो? कितनी सिंपल सी चीज है, हम 1 मिनट में ही कितनी बार इनहेल करते हैं, बट हमको इस क्वेश्चन के बारे में ही ढंग से नहीं पता, क्योंकि हमने ऑब्जर्व नहीं किया ना। पढ़ा तो है हमने, ठीक है, पढ़ा है क्योंकि हमको मार्क्स लाने थे, बट हमने क्या उस चीज को ऑब्जर्व किया? नहीं किया ना। तो हम जब तक चीजों को ऑब्जर्व करना नहीं सीख रहे हैं, समझना नहीं सीख रहे हैं, ग्रास रूट पे बातों को नहीं समझ रहे हैं, तब तक वो प्रॉब्लम आने वाली है समझने वाली, ठीक है। सो दैट इज वाई टेक योर टाइम, स्पेंड करो अपना टाइम क्वेश्चन के साथ में। ये मत सोचो कि बहुत 1000 क्वेश्चंस लगा लोगे तभी चीजें समझ में आएंगी ना। एक क्वेश्चन अगर अच्छे से लग गया तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फंडामेंटल्स पे अपना काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अटक रहे हो, किसी भी टॉपिक में अटक रहे हो, कहीं पे भी अटक रहे हो, अगर कॉम्प्रिहेंशन में भी तुम्हें दिक्कत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जिनको तुम मिस कर रहे हो, बार बार जिनको मिस कर रहे हो, उन पे काम करो और उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस पे काम करो, ठीक है। पहले फंडामेंटल्स पे काम करो, ओके। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल क्या था जिसकी वजह से सब शुरू किया था कि हमें एक्स स्क्वायर है 2/x है, हमें क्या करना है, हमें एक्स को रिमूव करना है। तो उसका वो जो अप्रोच है हमारा, वो अप्रोच कंसिस्टेंट है। उस अप्रोच को ही नहीं सीखोगे तो कोई भी क्वेश्चन हो नहीं सॉल्व कर पाओगे, जब तक कि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी ना हो, जहां पे कि ये करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। सिमिलरली एमजीएम कहां पे अप्लाई करना है, जहां पे कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं है कि इसको मिस कर जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस करते समय कई बार ऐसा होगा कि मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ तो मैं उस लाइन को ना पढ़ूं ध्यान से, बिकॉज वैसे ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बट जब मॉक में वो क्वेश्चन आएगा, जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे कई बार ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वहां पे नेगेटिव नंबर की पॉसिबिलिटी भी हो और तुम एमजीएम गलती से अप्लाई कर दो। सबसे पहली कंडीशन यही है कि सारे के सारे नंबर्स जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए, तभी हम एमजीएम की इनइक्वालिटी को अप्लाई कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ज्ञान सभा के बाद में अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा टाइम दो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो, क्योंकि ये अपने आप में कई सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। कई सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके मैंने क्वेश्चन बनाया तुम्हारे लिए, सो दैट तुम्हारे जो भी चीजें हैं वो एक बार फट से रिवाइज हो जाए सारी एक साथ में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16/x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6/y क्यूब प्लस 8 वेयर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। सबसे पहला काम इसमें जो करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है हमारा उसको तो पहले ही किनारे कर लो, 8 तो सेपरेट हो गया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 16/x को भी सेपरेट कर लो और 9y स्क्वायर प्लस 6/y क्यूब को भी सेपरेट कर लो। अब हमारे पास 3
अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पार्ट की, क्योंकि एक्स सेपरेट है, कहीं पे भी वाई इंक्लूडेड नहीं है उसके साथ में। मिनिमम वैल्यू पार्ट फाइंड करनी है इस पार्ट की, और 8 तो कांस्टेंट है, तो 8 का तो मिनिमम वैल्यू भी 8 है, मैक्सिमम वैल्यू भी 8 है, और सारी वैल्यूज 8 है। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स में क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। न्यूमरेटर में आ रहा है एक्स स्क्वायर, यानी एक नंबर में आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक में आ रहा है डिवाइड बाई एक्स, यानी कि दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा सो दैट हमारा डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर मिल जाए हमको। तो वील बी डूइंग एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाई एक्स प्लस 8 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल जाने वाला है हमको, सिर्फ 64 टू द पावर 1/3। और 64 की पावर 1/3 कितना होगा, 64 है 4 का क्यूब, तो यानी कि 64 की पावर 1/3 आ जाएगा 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो 12 इज द मिनिमम वैल्यू। और 12 वैल्यू हमें कब मिलेगा, व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई एक्स। ये बात ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई एक्स नहीं करना है, व्हेन द पार्ट्स आर इक्वल। जो पार्ट्स हम बना रहे हैं ना, फिर वो एक्स के पार्ट हो वाई के पार्ट हो, पहले क्वेश्चन से हम देखते आ रहे हैं जब पार्ट्स इक्वल होंगे तब ये चीजें इक्वल होंगी। यानी कि व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई एक्स विच इज इक्वल इंप्लाइज दैट ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू हमें मिलने वाली है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं 9y क्यूब 9y स्क्वायर प्लस 6/y क्यूब की। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, हमें इसका भी मिनिमम वैल्यू चाहिए। न्यूमरेटर में आ रहा है वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ रहा है वाई क्यूब। अब क्या जुगाड़ करो कि पावर हमारी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्वल हो जाए, क्या जुगाड़ करोगे, न्यूमरेटर में आ रहा है वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ रहा है वाई क्यूब। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। सो अगर न्यूमरेटर में हम वाई की पावर 6 ले आए और डिनोमिनेटर में वाई की पावर 6 ले आए, तब फिर हमारा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब तब तो फिर हमें वाई की पावर 6 एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर पे वाई की पावर 6 कब आएगा, वाई स्क्वायर है, 3 पार्ट्स में ब्रेक करो, जब इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करो, एंड दो 3 पार्ट्स विल बी 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। डिनोमिनेटर में वाई की पावर 6 कब आएगा, डिनोमिनेटर में वाई क्यूब है, 2 पार्ट्स में ब्रेक करो इसको, सो यानी कि प्लस 3/y स्क्वायर प्लस 3/y स्क्वायर। टोटल पार्ट्स हो गए 5, डिवाइड बाई करोगे 5, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे क्या बचेगा हमारा 3 3 3 3 3, यानी कि 3 टू द पावर 5 बचा। y की पावर तो कैंसिल आउट हो गए, टू द पावर 1/5, तो 3 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5, यानी अल्टीमेटली 5 इंटू 1/5 पावर 1 ही हो गया, तो 3 आ गया। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा सम है, दैट होल सम दिस विच इज 9y स्क्वायर प्लस 6/y क्यूब डिवाइड बाई 5, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, विच इंप्लाइज कि 9y स्क्वायर प्लस 6/y क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। मिनिमम वैल्यू 15 आ गया। मिनिमम वैल्यू अटेन कब करेगा, व्हेन द पार्ट्स आर इक्वल। तो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y स्क्वायर, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y स्क्वायर। सो y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1 पे ये इक्वल होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 पे ये इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का मिनिमम वैल्यू आया है 12, सेकेंड पार्ट का मिनिमम वैल्यू आया है 15, और लास्ट पार्ट 8 का मिनिमम वैल्यू तो 8 ही है। 12 प्लस 15 प्लस 8, आंसर विल बी 27 प्लस 8 35। 35 विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और सारी बातें आई बिलीव क्लियर हो गई होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज इफ p प्लस q प्लस r प्लस s इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस p इंटू 1 प्लस q इंटू 1 प्लस r इंटू 1 प्लस s इफ p q r s ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव हैं। ओके, गिवन है हमें p प्लस q प्लस r प्लस s जिसकी वैल्यू गिवन है, बट हमें जो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोज आर 1 प्लस p 1 प्लस q 1 प्लस r 1 प्लस s। तो इनका एडिशन क्या होगा, 1 प्लस p प्लस 1 प्लस q प्लस 1 प्लस r प्लस 1 प्लस s। तो पी क्यू आर एस तो पहले ही सेपरेट कर लो। इसके बाद में क्या बचा हमारा, 4 टाइम्स 1 बचा। सो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कितना है, दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 4 टोटल सम आ जाएगा हमारा 5। सम ऑफ ऑल दीज विल बी 5। नाउ अप्लाई एएमजीएम, क्योंकि हमें सम की वैल्यू मिल गई है, प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सो एएम विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज, सम ऑफ ऑल दीज है कि नहीं। सो दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स है, 1 प्लस p 1 प्लस q 1 प्लस r 1 प्लस s डिवाइड बाई 4, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज। तो 1 प्लस p इंटू 1 प्लस q इंटू 1 प्लस r इंटू 1 प्लस s, और टू द पावर कितना आएगा, पावर 1/4। ओके,
पावर 4 कर दो दोनों साइड पे, सो दिस बिकम्स 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस एस इज लेस देन इक्वल टू 5/4 टू द होल पावर 4. सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी, मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 5/4 टू द होल पावर 4 विच इज 625/256. ओके, दिस इज बिटवीन 2 and 3, 2 पॉइंट समथिंग आएगा वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, if x, y and z are positive real numbers satisfying x into y into z into x plus y plus z that is equal to 1, then find the minimum value of the expression x plus y into y plus z. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि x plus y into y plus z का मिनिमम वैल्यू पूछा है हमसे, और क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है वहाँ पे ना तो x plus y है ना तो y plus z है, यानी x plus y plus z तो है बट सिर्फ x plus y नहीं है, सिर्फ y plus z नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा. सबसे पहला काम करते हैं, इस प्रोडक्ट को ओपन करने की कोशिश करते हैं. इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी x into y प्लस x इंटू जेड प्लस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड. अब y हमारा 2 बार आ रहा है यहाँ पे. ओके, तो एक काम करते हैं, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, y कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा अंदर y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स जेड. अब x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारा ऑलरेडी जो गिवन कंडीशन है, गिवन इक्वेशन है वहां पे भी आ रहा है. तो क्या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, एक्स जेड इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 1. क्योंकि जैसे ही तुमने ये बात लिख दिया तो नाउ यू कैन से दैट वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1/xz. इफ दैट इज so this expression becomes 1/xz plus xz, and we know that 1/a plus a is always greater than or equal to 2. If a is positive तो x into z पॉजिटिव होगा बिकॉज सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू विल बी 2. मिनिमम वैल्यू विल बी 2. ओके, क्लियर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next question, if x, y and z are positive real numbers satisfying x plus y plus z is equal to 6, then find the value of the expression 1/x minus 1 into y minus 1 plus 1/y minus 1 into z minus 1 plus 1/z minus 1 into x minus 1. Now in this question हमें given क्या है, हमें given है x plus y plus z, और ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये क्या है, 1/x minus 1 into y minus 1, यानी कि x minus 1 y minus 1 z minus 1 को यूज किया है. तो हम अपनी जो इक्वेशन है उसको भी x minus 1 y minus 1 और z minus 1 की इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. So we can write this as x minus 1 plus y minus 1 plus z minus 1. So this will be equal to x plus y plus z minus 3, which is 6 minus 3, which is equal to 3. Now अगर हम x minus 1 को लिख दें a, y minus 1 को लिख दें b, z minus 1 को लिख दें c, ठीक है, तो a plus b plus c is equal to 3. और क्वेश्चन क्या पूछा है, 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca का मिनिमम वैल्यू. ओके, और 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो. तो एलसीएम में अगर हमारा abc आ गया, न्यूमरेटर में आ जाएगा c प्लस a प्लस b, विच इंप्लाइज दैट abc अपॉन abc नहीं होगा, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c अपॉन abc, और a प्लस b प्लस c की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन abc. और हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू. तो डिनोमिनेटर जब हमारा मिनिमम होगा तब वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम. अगर हमें 3/abc को मिनिमम करना है तो abc शुड बी मैक्सिमम, a इंटू b इंटू c शुड बी मैक्सिमम. इजंट इट सो? अगर हमें 3/abc को मिनिमम करना है तो a इंटू b इंटू c शुड बी मैक्सिमम, और a प्लस b प्लस c की वैल्यू 3 गिवन है. एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि abc का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्योंकि जैसे ही abc की मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, सो विल पुट दैट वैल्यू हियर, और उससे हमें 3/abc की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. एमजीएम स्ट्रेट अवे, ठीक है, स्ट्रेट अवे एमजीएम लगाना है, या फिर ये तो इतना ईजी है कि हमें पता है हमें abc सारे के सारे अगर इक्वल हो जाएंगे और सारे इक्वल टू 1 हो जाएंगे,
सो क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, यानी कि एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 ओनली, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगा एबीसी का। पुट कर दोगे, एक सेकेंड, पुट कर दोगे यहाँ पे तो 3/1, और आंसर विल बी 3/ABC का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, दैट विल बी 3/1 विच इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन का आंसर विल बी 3 ओनली। ओके, और 3 कब आएगा, व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2। और एक और चीज जो मैंने बार बार बताई है कि जब भी कभी कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली सिमेट्रिकल इन एक्स वाई एंड जेड, सिमेट्रिकल इन एक्स वाई जेड, है कि नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। यानी कि x को y से रिप्लेस कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, y को z से रिप्लेस कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, x को z से रिप्लेस कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो इसका मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है कहां पे मिलने वाला है, वो वहां मिलेगा जहां पे कि x y एंड z आर इक्वल। तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी तुम डायरेक्टली देख सकते हो कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में और तुम्हें आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। x इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, बिकॉज दोनों तीनों को इक्वल करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 6/3, यानी कि 2 आ जाएगा। 2 पुट करते ही तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि 1 + 1 + 1 आंसर विल बी 3। क्या ये पार्ट क्लियर है कि कभी भी अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है जो कि सिमेट्रिकल है एक्स वाई जेड में, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे तुम्हें चीजें कई बार देख के ऑब्जर्व हो जाएंगी। हमेशा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होगा, हमेशा नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस को भी जब हम कई सारे क्वेश्चंस अभी करेंगे वहां पे दिखेंगे ऐसे भी क्वेश्चंस जहां पे कि सिमेट्रिकल होगा बट स्टिल डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके हमें आंसर नहीं मिलेगा, या फिर कोई आंसर मिल जाएगा, कोई एक और आंसर नहीं मिल पाएगा। वैसे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, बट वो डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है, वो ऐसे नहीं होंगे, वो इस टाइप के नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सम है, सम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो एक्स वाई बाई जेड इज इक्वल टू वाई जेड बाई एक्स, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में कई बार कुछ और आंसर्स भी हिडन होते हैं जिनके लिए कि हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बट सिमेट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप देख पा रहे हो, ज्योमेट्री में भी हेल्प करेगा, अलजेब्रा में भी हेल्प करेगा, अरिथमेटिक में भी हेल्प करता है, हमेशा ही हेल्प करता है। सिमेट्री की किसी भी क्वेश्चन में अगर सिमेट्री है चीजों में, तो यानी कि हम चीजों को रिप्लेस करके कोई फर्क नहीं आ रहा है, विच इंप्लाइज की थिंग्स मस्ट बी इक्वल फॉर दैट पर्टिकुलर केस। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। स्पेसिफिक कोई और वैल्यू पूछा हो तो अलग की बात होती है, बट मिनिमम वैल्यू के लिए एग्जैक्टली सिमेट्री काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if p, q, r and s are 4 positive real numbers such that p plus q plus r plus s is equal to 24, then minimum value of 1 by p plus 1 by q plus 1 by r plus 1 by s क्या होगा। अगेन बिल्कुल सिमेट्रिकल मामला है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बिना सॉल्व किए भी तुम सोच सकते हो कि सारी की सारी वैल्यूज इक्वल होंगी। तो p भी 6 हो जाएगा, q भी 6, r भी 6 और s भी 6। तो सम का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6। So this will be equal to 4 by 6 which is 2 by 3, 2 by 3 ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। रियल अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, रियल अप्रोच ये होगा कि यहां पे हमें सम गिवन है और पूछा क्या वैल्यू है, 1 by p plus 1 by q plus 1 by r plus 1 by s का मिनिमम वैल्यू पूछा है। अब प्रॉब्लम ये है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए यहां पे रेसिप्रोकल का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, रेसिप्रोकल्स के सम का वैल्यू पूछा गया है। और अगर तुम कनेक्ट कर पा रहे हो तो हमने एपी एचपी में भी तो यही कनेक्शन था ना, कि एचपी में क्या था, अगर एचपी में एपी में हमारे नंबर्स एपी में है तो उनका जो रेसिप्रोकल्स है दे विल बी इन एचपी, या फिर रेसिप्रोकल्स अगर हमारे एचपी में है तो फिर नंबर्स विल बी इन एपी एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअल हमें अप्लाई क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अप्लाई एम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। दिस इज वन ऑफ सच क्वेश्चंस जहां पे कि हमें एम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वी नो दैट एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम एंड जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। एम क्या होगा इन 4 नंबर्स का, एम होगा एवरेज p plus q plus r plus s divided by 4 and that will be greater than equal to 4 divided by 1 by p plus 1 by q plus 1 by r plus 1 by s. So this sum we know, this is 24, put कर दोगे 24 by 4 will be 6, तो 6 is greater than equal to 4 divided by ये पूरा का पूरा सम, ठीक है, दिस कंप्लीट सम। सो यहां से मल्टीप्लाई कर दो, इसको लेके चले जाओ इधर, दिस सम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 by 6, सो मिनिमम वैल्यू विल बी 4 by 6 ओनली विच इज 2 by 3। क्लियर, और डायरेक्टली सिमेट्री का अप्लाई करके भी हमने वो चीजें सीख ली थी, देखी ली थी, आंसर निकाल ही लिया था। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। सिमेट्री से भी हमने क्वेश्चन को शॉर्ट अपने लिए कर ही दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, फाइंड द मिनिमम ऑफ सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9। एक सेकेंड, ओके, ठीक है, हाँ। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9। तो इस बार हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल्स गिवन है, लेट अस से नंबर्स आर ए बी एंड सी। सो ए प्लस बी प्लस सी, मिनिमम वी नीड टू फाइंड आउट
when it is given that 1 by a plus 1 by b plus 1 by c, that is 9. Apply am greater than equal to hm. So a plus b plus c by 3 is greater than equal to 3 divided by 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. Now this sum is equal to 9. So this becomes a plus b plus c by 3 is greater than equal to 3 by 9, which is 1 by 3. So a plus b plus c will always be greater than equal to 1. ओके, सिमेट्री को यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं? इफ दिस सम इज 9 तो 1 बाई ए की वैल्यू क्या होगा? ऑल दीज विल बी इक्वल एंड विल बी इक्वल टू 3. सो ए विल बी इक्वल टू 1 बाई 3, बी भी 1 बाई 3 होगा, सी भी 1 बाई 3 होगा, तो सम क्या आ जाएगा हमारा? 1 बाई 3 इंटू 3, सम आ जाएगा 1, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1. तो सिमेट्री से भी कर सकते थे, बट यहां से ऐसे दो क्वेश्चंस करके हमने ये भी समझ लिया कि कहां पे हम एम ग्रेटर इक्वल टू एच एम अप्लाई कर सकते हैं, कहां पे अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है. इज दैट क्लियर? सो दिस रैप्स अप ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्सवेल एंड जहां पे कि हमें एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी को यूज करना है. आई बिलीव कि ये सेशंस में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वो तुम्हें समझ में आए होंगे, सारी की सारी बातें क्लियर हुई होंगी और सेशन में मजा भी जाएगा. बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी जो सिर्फ तुम्हारी इन टॉपिक्स तक लिमिटेड नहीं है, वो और भी जगह पे अप्लाई होगा. ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में, और फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वी विल बी अप्लाइंग डिफरेंट टॉपिक. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.